السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بورن بیبی کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا سا فراک بنا کر دکھا رہی ہوں۔ یہ بالکل نیولی بورن بیبی کے لیے ہے اور بہت چھوٹے سے سائز میں ہے، اور یہ ٹوٹل اس کی لینتھ جو ہے وہ 8 انچ ہے، 8 انچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ کہ اس کی بیک بالکل سمپل ہے اور اس کی اسٹچنگ بہت آسان ہے۔ ہمیں ہر سائز کے بچوں کے بیبی فراک مل جاتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے فراک ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ اس کا سلیو بھی بمشکل 5 انچ اس کی لینتھ ہے، اور ٹوٹل اس کی لینتھ جو ہے وہ 8.5 انچ ہے۔ اور اس کی کٹنگ اور اسٹچنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے پیسز جو اگر ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں فیبرک سے، تو ہم اس میں سے بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا پیس ہے۔ اس میں بیک بناؤں گی میں 9 انچ میں اس کی لینتھ لے رہی ہوں۔ اسی پیس کو میں نے اور لینتھ کم کر دیا ہے اس کو، اور جتنا سا یہ پیس تھا اس کے حساب سے میں نے اس کی چوڑائی لی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ 12 انچ چوڑائی کا یہ پیس تھا تقریباً کٹنگ ہونے کے بعد۔ یہ دیکھیں 6 انچ ہاف ہے۔ اب اس کا میں شولڈر کٹ کر رہی ہوں 3.5 پر، یعنی ٹوٹل 7 انچ کا شولڈر ہوگا۔ تیار ہونے کے بعد یہ 6 انچ کا رہ جائے گا، 6.25 انچ کا، اور 3.5 انچ پر میں اس کا آرم ہول کا نشان لگا رہی ہوں کٹ کرنے کے لیے۔ اور اب دیکھیں 3.5 انچ پہ میں نے اس کا نشان لگایا ہے۔ ابھی شولڈر کا سائز 3.5، اگر ہم سینٹی میٹر میں دیکھیں تو یہ 9 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی اے لائن کٹنگ کریں گے۔ اب یہ دیکھیے 5 انچ پر میں اس کا نشان لگا رہی ہوں۔ یہ ٹوٹل 10 انچ اس کی لینتھ رہے گی۔ جب سلائی ہوگا تو 9 انچ اس کی تقریباً اس کی لینتھ رہے گی چیسٹ کی۔ یہ بیک کٹنگ ہو گئی ہے۔ بہت چھوٹے بورن بیبیز کے جو فراک ہوتے ہیں وہ نارمل سے زیادہ چوڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کھلے فراک ہوتے ہیں، لیکن لینتھ ان کی کم ہوتی ہے، کم لینتھ کے ہم فراک بناتے ہیں۔ اب اس کی میں اوپر سے یوک کٹنگ کرتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرم ہول جتنا ہوتا ہے، ہمارے جو گلائی والا حصہ ہے یہیں تک آئے گا۔ اب یہ سلائی کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے نیچے سے، یہ بالکل جتنا آرم ہول کا سائز تھا میں اتنا یوک کا سائز لے رہی ہوں، لیکن جب یہ تیار ہوگا تو یہ یوک جو ہے چھوٹی ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں میں نے 1.5 انچ زیادہ چوڑائی کا لیا ہے، کیونکہ فرنٹ اوپن ہے، اس کی الگ سے بٹن پٹی نہیں بنائی جائے گی۔ یہ دیکھیں سلائی میں آنے کے بعد یہ مزید کم ہو کے یہ گلائی والا حصہ نیچے کے حصے میں جائے گا۔ اب جب ہم نیچے گھیر کا حصہ ہم کٹ کریں گے تو 1 انچ بڑھا لیں گے یوک کے بعد جو حصہ ہوگا۔ ابھی چھوٹے چھوٹے میرے پاس پیس تھے، ان کی سیدھا کر لیا ہے میں نے، سیدھ نکال لیے، اور یہ حصہ میں نیچے کی طرف رکھوں گی۔ 9 انچ چوڑائی ہے، اور یہ کناری والا پلین والا حصہ میں فرنٹ سائڈ پر رکھوں گی۔ فرنٹ اوپن ہے کیونکہ یہ فراک، اور یہ 1.5 انچ کا آرم ہول، 1.5 انچ چوڑائی، 1.5 انچ گہرائی، یہ آرم ہول کی گلائی والا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے، چن دینے کے بعد یہ یوک کے برابر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے شیپ آ رہی ہے یہ سلائی کے لیے۔ جب ہم اندر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ چنے دینے کے بعد اس کی شیپ جب ہم اس کو اوپر رکھیں گے تو اس طرح سے آ جائے گی۔ یوک تھوڑی سی بڑی محسوس ہو رہی ہے، اس کو ہلکی سی کٹنگ اور کر کے برابر کر لیں گے۔ اب یہ نیک کٹنگ کر رہی ہوں 2 انچ چوڑائی پر، 1 انچ سے کم گہرائی ہے، تقریباً 2 سینٹی میٹر اس کی گہرائی لیے، چوڑائی جو ہے 2 انچ ہے۔ 2 انچ سے بھی چاہیں تو ہم تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں نے یوک رکھ دی ہے۔ اب یہ یوک کی نیک کٹنگ ہو رہی ہے فرنٹ کی، 1 انچ اور مزید نیک کو گہرا کٹنگ کریں گے۔ اس طرح کے فراک بگنرز بھی بآسانی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کا آرم ہول بھی تھوڑا سا اضافی کٹ کر رہی ہوں میں، یہ فرنٹ کا صرف آرم ہول زیادہ کٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کٹنگ والا حصہ جو ہے آرم ہول کا یہ اس طرح سے رہے گا، اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی لینتھ زیادہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے برابر کریں گے
इस तरह से आप देखें, ये नीचे का घेर का हिस्सा थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, तकरीबन 3 इंच ज़्यादा लिया है। अब हम बाजू की लंबाई चौड़ाई लेते हैं। ये 6.5 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ बाजू की। चौड़ाई हम इस तरह की बॉर्न बेबीज़ के लिए हम आर्म होल की स्लीव्स की चौड़ाई ज़्यादा लेते हैं, तो 4.5 इंच मैं इस वक़्त चौड़ाई ले रही हूँ। बहुत छोटे बेबीज़ के लिए, बॉर्न बेबीज़ के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको। ये 1.5 इंच पर आर्म होल की कटिंग होगी और नीचे से भी थोड़ी-सी कटिंग की है मैंने। और आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे-छोटे पीसेज़ जो हमारी कटिंग बची हुई होती है कपड़ों की, उनमें से हम इस तरह के बॉर्न बेबीज़ के फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, जो बैक की चौड़ाई है। ये इसकी चेस्ट की चौड़ाई है 10 इंच, और ये शोल्डर की चौड़ाई, ये अलग से मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं, 7.5, और ये लेंथ है इसकी 9.5, और ये नेक चौड़ाई है विथ 4 इंच, और ये योक की चौड़ाई है 5.5 इंच, 5.5 इंच, और योक लेंथ जो है वो हाइट 4 इंच। इसी तरह ये नीचे का बॉटम, फ्रंट का बॉटम है 6 इंच इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट जो है वो 7 इंच है, और स्लीव्स की हाइट जो है लेंथ 6.5, और स्लीव्स की जो विड्थ या चौड़ाई है वो 9 इंच होगी। अब मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम बाजू में इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक लगाना बेहतर रहता है, पाइपिंग चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन पहनाने में बहुत आसानी रहती है क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को कपड़े पहनाना भी इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस तरह कंफर्टेबल ड्रेसेस बनाने चाहिए जिनको हमें पहनाना भी बहुत आसान हो। इसलिए मैं इलास्टिक लगा रही हूँ बिल्कुल नीचे स्लीव में। अब ये फ्रंट का हिस्सा है, जो नीचे का बॉटम पार्ट है, उसमें चुने दे रहे हैं। तो ये जो फ्रंट का हिस्सा है, जो प्लेन हिस्सा है, वहाँ पे मैंने चुने नहीं दिए हैं, और साइड में सिर्फ चुने दी जा रही हैं। आप ये देखें, जो पट्टी वाला हिस्सा आएगा इसी में से फोल्डिंग होगी बटन पट्टी की, तो उसमें मैंने चुने नहीं दिए हैं। अब चाहें तो इसमें हम पाइपिंग लगा सकते हैं, बगैर पाइपिंग के इसी तरह भी हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेस लगाना चाहें लेस लगा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इसको जितना चाहे सजाना चाहें। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं फ्रॉक के, ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के लिए होते हैं। सिर्फ़ इसमें हम कलर देख सकते हैं कि अगर हम बेबी बॉय के लिए बना रहे हैं तो ये स्काई ब्लू कलर है, लाइट बिल्कुल। तो अगर हम बेबी गर्ल्स के लिए बना रहे हैं तो उसमें हम थोड़े से शौक कलर यानी कि पिंक, येलो वगैरह भी ले सकते हैं। अब आप देखें, पाइपिंग बहुत ही बारीक सी पाइपिंग निकाली है मैंने इसमें। बहुत छोटे बेबीज़ के लिए पाइपिंग भी हम बहुत बारीक सी निकालते हैं। ये देखें, इनको मैंने इसी तरह ऊपर से रख कर जोड़ दिया है। अब ये बैक के साथ इसके शोल्डर जोड़े जाएँगे। बहुत ही आसान होते हैं छोटे बेबीज़ के ये फ्रॉक्स बनाने, लेकिन आप ये देखें, आपको बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे इस साइज़ के फ्रॉक। ये टोटल 8.5-9 इंच का ये फ्रॉक है लेंथ में, और बहुत छोटा-सा फ्रॉक है, बिल्कुल गुड़िया का फ्रॉक लग रहा है ये। इस तरह देखें आप, शोल्डर का साइज़ फ्रॉक के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, और इस छोटे बेबीज़ के लिए हम चौड़ाई भी ज़्यादा रखते हैं उसकी लेंथ के मुताबिक, लेकिन लेंथ हम कम रखते हैं बहुत छोटे बेबीज़ के लिए। बॉर्न बेबीज़ की लेंथ जो है वो हमारी कम होती है। अब देखें, साइड की सिलाई की जा रही है, साइड की सिलाई की है। अब हम ये नीचे का घेर में अगर पाइपिंग लगाना चाहें पाइपिंग लगा सकते हैं, अगर मोड़ना चाहें तो मोड़ भी सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। पाइपिंग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि नीचे का घेर जो है वो चौड़ा-चौड़ा लगता है, खुला हुआ। अभी पाइपिंग मैं खोल कर लगा रही हूँ। मैं तैयार बाज़ारी पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर बाज़ारी पाइपिंग नहीं है आपके पास तो आप किसी भी कपड़े की तिरछी रेब वाली पट्टियाँ कटिंग कर सकते हैं 1.25 इंच की, और उसमें इस तरह से पाइपिंग बना सकते हैं।
और आप देखें मैं बहुत ही बारीक पाइपिंग इसमें से बना रही हूँ। चौड़ी पाइपिंग अच्छी नहीं लगती इतने छोटे फ्रॉक में। और इस तरह से ये तकरीबन फ्रॉक रेडी है, बस ये नेक की पाइपिंग और लगानी है। और ट्राउज़र भी जब हम बनाएँगे अगर तो हम इसका 9 से 10 इंच हमारा लेंथ का ट्राउज़र तैयार होगा। बहुत ही सिंपल सा ट्राउज़र और उसमें बस एक बात का ख़्याल रखते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र बनेगा। इसका जो ऊपर का क्रोच लाइन या आसन हम जिसे कहते हैं, छोटे बेबीज़ के लिए, बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत बड़ी रखते हैं और जो नीचे पाइंचे वाली जो साइड है, नीचे का पाइंचा जो होता है, वो मुश्किल 3 से 4 इंच जितना ही हम नीचे छोड़ते हैं। बॉर्न बेबीज़ हों या छोटी बेबीज़ जिनको डायपर समय लगाने पड़ते हैं, तो उनकी जो क्रोच लाइन या आसन जो होती है हम बड़ी-सी रखते हैं ताकि पहनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए और नीचे जो पाँव वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ही छोटा-सा थोड़ा-सा रखते हैं 4 इंच या हद 5 इंच। ट्राउज़र हमारी मर्ज़ी है इसमें व्हाइट पहना सकते हैं, स्काई बना सकते हैं इसके साथ। अब ये पाइपिंग भी तैयार हो गई है, तकरीबन फ्रॉक तैयार है, इसमें टिच बटन मैं लगाऊँगी, चाहे तो काज बटन करा सकते हैं इसके अंदर। और आप देखें फ्रॉक तकरीबन तैयार है, रेडी है, मैं बटन के बाद दिखा रही हूँ। अब अगर हमें बेबी बॉय के लिए बनाना है तो हम राइट साइड वाली पट्टी जो है वो ऊपर रखेंगे और अ, बेबी गर्ल के लिए बनाना है तो ये पट्टी हम ऊपर रखेंगे जो लेफ्ट वाली ये नज़र आ रही है आपको। बाजू इसका 5 इंच का जैसे कि तैयार है और आप देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ जो है वो 8.5 इंच है और बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है जैसे कि आप देख रहे हैं। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको समझ आ गया होगा। चाहें तो घर में इस तरह के प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे झबला फ्रॉक बना सकते हैं। छोटे बेबीज़ के लिए, बॉर्न बेबीज़ की अगर तैयारी करनी है, तो इस तरह की हम डिज़ाइनिंग खुद घर पर कर सकते हैं। बहुत प्यारे से फ्रॉक बहुत छोटे पीसेज़ में तैयार हो जाते हैं।